Today we are starting with a new chapter because in the past 2 or 3 classes we have already completed Triumph of Surgery, and now we are moving from the same book, that is Footprints Without Feet. And I'm starting with the chapter that is The Thief's Story. If we look into the story, those who have done, they must have read about the story. Sometimes in our life we come across people, हम लोग ऐसे लोगों के सामने आते हैं जो जिद्दी हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, but maybe that is a circumstance, that is a situational. आप में से, हम में से none would have heard this word कि उनके घर में चोर पैदा हुआ है. Have we ever heard about that? Has anyone? No. We must have seen that a child is born, a boy is born, a girl is born, but we never say a terrorist has born. मैम हमारे तो पड़ोस में जो है टेररिस्ट पैदा हुआ है. मैम हमने देखा था वहां पे उनके घर में जो है चोर पैदा हुआ था. So we never come across any such statements, because when we all are born, we are only a kid, we are only a child, but due to situations we aren't able to handle the situations. हम अपने situations को handle नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त में क्या होता है, a person may take crime as a resort. वो क्राइम को अपना बचाव ले लेता है, but no, none is born as a criminal or as a thief. तो होता क्या है, as a teacher, as a parent, as a mother, as a woman, I am deadly against any kind of crime. Personally मैं कभी किसी को भी देखूंगी तो first of all I'd raise my voice कि crime should not be there. One shouldn't never indulge. Yet हम उन्हें कैसे ठीक करेंगे? अगर हम उन्हें पनिश करते हैं, से हम पनिश करते हैं, तो what will happen? After few days maybe वो दोबारा वही काम करेंगे. We have a very beautiful chapter in 12th standard which is based on the same theory of what we call as crime and punishment. And if we try to reform them, जो कि इस चैप्टर का थीम है, अगर हम उनको प्यार से हैंडल करें, जो कि इस चैप्टर का थीम है द थीफ स्टोरी, द सेकेंड चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का. There is a question also at the back. If we try to reform them without giving them any punishment, maybe we aren't completely successful. मैं ये नहीं बोल सकती कि हम 100 चोरों को मिलेंगे तो 100 को 100 को हम ठीक कर देंगे, but yes, there will be a change. हमें लोगों के दिमाग से वो चीज निकालनी चाहिए that crime और थेफ्ट्री मतलब चोरी करना are not the right manner of survival. The chapter The Thief Story is about a boy, 15 years boy. We also call such crimes as juvenile crimes, JUVENILE, juvenile crimes, because हमारे according to the law of India
a person who has not attained adulthood is not considered as an adult and as a crime. तो हम उनको जुवेनियल क्राइम बोलते हैं, और इनके लिए जो जेल्स होती हैं या जो पनिशमेंट्स होती हैं, they are different. They are put into the reform houses, not into the jails. This chapter is about a boy who is around 15 years, but he was a very experienced thief. और वो चोरी नहीं करता था. He was not a thief जो डायरेक्टली जाएगा और किसी के पर्स में से पैसा निकाल देगा. No, he wasn't like that. He would cheat. He would deceive others. वो दूसरों को धोखा देता था. He would pose as ABCD, a con man, हम जिसको बोलते हैं tricksters और con man. We call them as tricksters or con man. मतलब वो अपना नाम बदल लेगा and then he would work with someone and then उनका जो जब वो जो मालिक है वो ट्रस्ट करने लगेगा तो he would rob that person of money and then he would run away. And thus this had become his habit of deceiving others and robbing them of their money. अब उसने जो है, he had come across one of the man whose name was Anil. Anil was around 25 years का इंसान था and casual था. He was a freelance journalist, freelance magazine writer. फ्रीलांस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीलांस का मतलब होता है वी डू नॉट वर्क अंडर एनी वन. हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं. लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, सो दे आर फ्रीलांसर्स. वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था, तो sometimes he would be earning a good amount, sometimes he would not be earning. जब भी अर्न होगा वो दिल खोल के पैसा खर्च करता था. He would be spending heartily, बहुत मजे से सबके साथ पैसा खर्च करता था. Now this boy जो है, इसने उसके पास गया and थोड़ी सी उसके साथ फ्लैटरिंग की, मस्ती की, थोड़ा उसको मस्का लगाया and then he started following. When Anil ने से बात किया तो इसने अनिल को बोला that he wanted to work for Anil. Now Anil said that he was not having this much of money and he was also not. लेकिन इससे थोड़ा सा जैसे प्लीड किया तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो. इस लड़के को खाना वाना बनाना नहीं आता था, बट इसने एग्री कर लिया कि यस आई कुक. और पहले दिन जब उसने कुक किया तो इट वॉज सो मतलब कि इट वॉज वर्स्ट देन वर्स दैट दे हैड टू थ्रो इट अवे टू द स्ट्रीट डॉग्स. लेकिन अनिल ने इस पर ट्रस्ट करके अपने घर में पनाह दे दिया. ही यूज्ड टू स्टे इन द बालकनी एंड ही यूज्ड टू डू द एरेंड वर्क, सब्जी लेकर आना, ये काम करना, वो काम करना. अनिल वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड समटेरियन, एक अच्छा नागरिक था. सो ही आस्क्ड दिस बॉय टू रीड एंड राइट, और ये जो है उसको पढ़ाना लिखाना सिखाता था. जब भी खाली टाइम मिलता अनिल वुड बी टीचिंग हिम दी हाउ टू रीड राइट. इसको थोड़ा थोड़ा वर्ड्स वगैरह सिखाना शुरू किया. अब ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो जो चोर वाला जो दिमाग होता था ना, वो कभी कभी बाहर निकल आता था. What he would do is he would binge the amount. जब भी वो पैसा देता था सब्जी लाने के लिए कुछ भी, तो बाकी पैसे कभी भी उसको वापस नहीं करेगा. He would keep it. अनिल माइंड नहीं करता था. क्यों? क्योंकि अनिल इसको सैलरी नहीं देता था. तो ये अगर कोई पैसा रख लेता था तो he would not mind. अनिल को पता था ये पैसे रखता है, but he would never mind. अब ये अपने आप को कन्विंस करता था
अनिल कौन सा मुझे सैलरी दे रहा है, अगर मैंने पैसे उठाए तो क्या हो गया? तो ही वुड बी ऑन द सेल्फिश साइड. नाउ ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत गया. वन डे ही थॉट ही शुड नाउ स्टार्ट ऑफ हिज बिजनेस. बिजनेस मतलब वही चोरी करने का. अनिल के पास कुछ अच्छे पैसे आए थे. He had written for a magazine. He got a good amount. ये जो था इसकी लालच आ गया. He made a plan. इसने रात को अनिल ने जो है पैसा जो है अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था. So when he slept, he just took some of the money जितने इसके हाथ में आए and he ran away. He ran away to the railway station, but somewhere the goodness of Anil was also following him. जो अनिल की अच्छाइयाँ थी, जो इसको वो खाना खिलाता था, इसको कभी कुछ नहीं कहता था, इसको पढ़ाना लिखाना सिखा रहा था, वो सब भी आ रहा था. यानी कि इसका जो कंसाइंस था, कंसाइंस मतलब बेटा हमारी अंतर आत्मा, that was pinching him. When he reached the railway station, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ मतलब कि जो 2 मार्कर में आता है. I'll tell you what are the questions that comes in the paper. The train was in front of him, but he could not board the train. क्योंकि इसका जो कंसाइंस था, दैट इसका जो सोल था, वो इसको अलाउ नहीं कर रहा था कि ये अनिल को धोखा दे. So he just left the train. जब ट्रेन लीव हो गया तो इसके दिमाग में आया अब मैं क्या करूं. बट ही समॉन द करेज, हिम्मत की, बाहर आया. बारिश हो रही थी. थोड़ी देर बाद ही केम बैक टू द हाउस. और वो जो नोट थे, द मनी, वो गीले हो गए थे. येट इसने उसको वापस वहीं पे रख दिया एंड आकर सो गया. इन द मॉर्निंग अनिल जो है उसने इसके साथ में बहुत अच्छे से बर्ताव किया. चाय दी, इसको पैसा दिया. एंड ऑल्सो ही सेड दैट ही इज गोइंग टू गिव हिम रेगुलर सैलरी नाउ ऑनवर्ड्स. उस अनिल, अब क्वेश्चन यहां पर मैं जो आता है या आया है इन बोर्ड्स है कि डू यू थिंक अनिल न्यू दैट द बॉय हैड स्टोलन द मनी? यस, बिकॉज जो करेंसी नोट थी वो गीली थी. एंड अनिल मस्ट हैव नोन कि रात को बारिश हुई है. जब वो खुद बाहर नहीं गया तो कैसे बारिश हुई होगी. सो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड known that this boy Hari had stolen. ये सिडोनिम है उसका. सिडोनिम मतलब एक झूठा नाम है, ये उसका रियल नाम नहीं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में उसका नाम हरि सिंह ही है. तो मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें इस चैप्टर से यू हैव 3 क्वेश्चंस. 2 तो आपके कैरेक्टर स्केच होते हैं जो लॉन्ग में आ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग. एंड वन इज द थीम बेस्ड की why did not Hari hand him over to the police? Means a question can come as a tricky. मतलब अनिल जैसे जो बाकी लोग होते तो वो शायद इसको पुलिस में दे देते, बट अनिल ने क्यों नहीं दिया. या how did Hari finally turn into a new leaf? Turn into a new leaf मतलब वो कैसे सुधर गया. या if you are in place of Hari, then what would have been your decision? And in सबका एक थेमेटिक जो आंसर है वो ये है कि अनिल ने इसलिए उसको पुलिस में नहीं दिया था. दो अनिल knew that this man had stolen the money, yet he wanted to arouse the goodness in him. उसको पता था कि अगर वो पुलिस में दे देगा तो what will happen? The police will be beating him, putting him into the juvenile house,
एंड देन वंस अगेन ये दोबारा क्राइम में जाएगा. वो उसके दिमाग से उस क्रिमिनल माइंड को हटाना चाहता था. He wanted to reform the boy. And that was जो उसने अच्छा किया था, जो उसको वो पढ़ाना लिखाना. अब जो ये बच्चा था हरी सिंह, इसके दिमाग में एक बात आई थी कि अगर मैं अनिल के साथ रुक गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे पढ़ना लिखना आ जाए और मैं भी शरीफों के जैसा काम करूंगा. Because education doesn't need any crime. But yes, illiteracy becomes a reason of crime. हम लोगों ने लास्ट ईयर इन द इकोनॉमिक्स पढ़ा था पीपल एज रिसोर्स में दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट लीड्स टू क्राइम. तो दैट इज द रीजन. और यही चीज जो है उसको समझ आई दैट इफ ही स्टेज बैक विद अनिल ही वुड बी रिफॉर्म्ड. एंड दैट इज हाउ he reformed into a good person. So this is the chapter, The Thief story. Now we are taking it with NCERT. I was still a thief when I met Anil. इसमें जो छोटे 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 जो वर्ड्स हैं बच्चे, आई वॉज स्टिल अ थीफ, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि आई वॉज स्टिल अ थीफ का मतलब क्या होता है? मीन्स व्हेन द एनकाउंटर टुक प्लेस. एनकाउंटर मतलब व्हेन ही हैड मेट अनिल, he at that time he was actually a small time thief. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. This came in the exam as an MCQ question and also as a 2-marker that what is the meaning of this. मतलब उस even though he was only 15 years boy, but he was an experienced and fairly successful. मतलब he was expertise in robbing people. He was expertise in robbing people. वो दूसरों से चोरी करने में माहिर था. Anil was watching wrestling match when I approached him. उस वक्त में वो मुक्केबाजी का मैच देख रहा था. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. For my purpose मतलब यहाँ पर what is the purpose? To deceive him, उसको धोखा दे. I hadn't had much luck of fate and thought I might be able to get into young man's confidence. पिछले कुछ टाइम से he was not getting some people to rob, और इसको लगा कि ये जो अनिल है ये थोड़ा देखने में सिंपल इजी गोइंग सा लग रहा है, इसको बुद्धू बनाना आसान है. अब सरकास्टिक कमेंट क्या है? दैट अनिल वॉज वेरी टॉल, लीन, पतला दुबला, लेकिन इसने जाकर उसको मक्खनबाजी लगाई. You look a bit of wrestler yourself. A little flattery helps in making friends. ये पेपर में आया था, लास्ट ईयर ही आया था. I don't know the school but it came. A little flattery help मतलब अगर आपको किसी को पटाना हो, किसी के साथ दोस्ती करनी हो ना, तो थोड़ी सी मक्खनबाजी लगा दो. So do you? He replied, which put me off for a moment because at time I was rather thin. उसने कहा तो तुम भी हो. तब वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया क्योंकि और पतला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. थोड़ा बहुत करता हूँ. झूठ बोला इसने. What's your name? Hari Singh. I lied. I here is for the thief. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. हर महीने ही अपना नाम बदलता था तो ना पुलिस पकड़ पाती थी ना इसके जो एम्प्लॉइज होते थे वो पकड़ पाते थे. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers
who were grunting, lifting and throwing each other about. मतलब वहां पे जो रेसलर्स मुक्केबाजी कर रहे थे वो उनकी तरफ देखकर बात करने लगा. उनके तो बॉडी पे तेल लगा हुआ होता है ना, बिकॉज दे शुड नॉट हर्ट ईच अदर. तो वो एक दूसरे को, आई हैडंट मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. modestly मतलब very very humbly, politely. After this introduction, sorry, I hello again, ये उसके पीछे जाने लगा. I gave him my most appealing smile. यहाँ पर my most and want to work is alliteration. If it comes as an MCQ, it may come. उसने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं. अनिल said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Again, it is alliteration completely. Misjudged का M, my का और man. मतलब यहाँ पर misjudge मतलब मैंने गलत इंसान के साथ में पंगा ले लिया. Because he wanted to rob a person who is having money. So he had judged Anil as a worthy person, as a wealthy person, which was incorrect. उसने तो सोचा था अनिल के पास पैसे होंगे, बट अब वो थोड़ा, कैन यू फीड मी, आप मुझे खिला सकते हो, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैं खाना खिला दूंगा. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उसने कहा तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है. मतलब वो इतना बुरा था कि उसे कुत्तों को दिया. उसने कहा आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. ये उसके आगे पीछे घूमता रहता था, स्माइल करता रहता था. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." उसे बड़े प्यार से सहला कर बोला, चलो मैं खाना बनाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. Means सब्जी लेने जाते हैं तो आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए. तो अनिल सेड ही वुड बी टीचिंग हिम द बेसिक एजुकेशन. आई वॉज ग्रेटफुल. I knew that once I could read like an educated man, there would be no limit for what I could achieve. तो बड़ा अच्छा लगा. It was quite pleasant for working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. This is what I had told you in the very beginning, that ये question आता है कि how do you know that, do you think that Anil knew he. कहता है बाकी क्या होता था, अनिल चला जाता था या ये जाकर घर का राशन लाना. डे सप्लाई मतलब घर का जो रोजमर्रा का राशन होता है वो. एंड जब भी सामान लाएगा ही वुड बी मेकिंग प्रॉफिट. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी. मतलब इसको लगता था कि अनिल को है पता. अनिल भी तो पहले तो अनिल खुद ही सामान वगैरह लाता था, तो ही मस्ट बी हैविंग अ फेयर आइडिया कि ये झूठ बोल रहा है. Anil made money by fits and starts. The paper में question आता है, what is the meaning of this line, and also what do you understand by fits and starts. Fits and starts का मतलब होता है intermittent, not regular. मतलब he did not have a regular income. He used to have
इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के पैसे उसके पास आते थे, कभी ज्यादा तो कभी कम. कभी किसी बार में whenever he wrote he would be getting good money or sometimes he would not be getting any money. So fit and starts is a phrase. ये आपका जो है phrase है for irregular. He earned money but it was not a regular income. Fits and starts मतलब irregularly. Agar if question comes, what is the meaning of the phrase fits and starts means irregular. And if the question is, what does this sentence mean? And he made money by fits and starts, matlab Anil earn money but not on a regular pace. He would borrow one week, lend the next. मतलब वो एक बार तो अपने दोस्तों से कर्जा लेगा, तो दूसरा हफ्ता उसके पास इतना पैसा होगा कि वो उल्टा दूसरों को कर्जा देगा. He kept up worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. इसका कहने का मतलब है that Anil was a casual man. Anil was a callous man. मतलब कि वो बिल्कुल भी पैसों की परवाह नहीं करता था. चेक नहीं आता था तो उसको चिंता होती थी, लेकिन एक बार पैसा आ गया तो वो पैसा लेकर सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines. पेपर में क्वेश्चन आया था what did Anil do for his survival. तो Anil Anil seems to be a freelance writer. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer मतलब होता है बेटा strange. Queer का मतलब होता है strange, बड़ा अजीब सा है. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. मतलब वो काफी पैसा लेकर आया और उसने कहा कि उसकी जो बुक है वो बिक गई है. Now what happens is when a book is sold means if a person is writing a book and that book is published, तो उस बुक जितनी बुक्स पब्लिश होती हैं, जितने बुक्स आपकी बिकेंगी, वो सबका जो रॉयल्टी होता है दैट गोज टू द राइटर. इट्स अ मतलब कि यू कैन से जैसे हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं लाइक चेतन भगत, रविंदर जैन, रविंदर सिंह, इनफैक्ट रविंदर सिंह. सो हाउ इनकी पहली बुक अगर सेल आउट हो गई तो व्हाट हैपेंस इज उस बुक की जितनी कॉपीज अराउंड द वर्ल्ड सेल आउट होंगी उसका सबका पैसा इनके पास जाता है. सो ही हैड ऑल्सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. रात को इसने देखा कि ही सॉ हिम टक द मनी, मैट्रेस के नीचे टक करके मतलब नीचे छुपा के रख रहा था, गद्दे के नीचे. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had done anything in my line of work. Again, this question comes, what is the meaning of my line of work? मतलब जो छोटी मोटी चोरियां जो वो शॉपिंग के बिल से 1 रुपए 2 रुपए चुराता था, उसके अलावा वो जो रियल काम करता था, दैट इज रॉबिंग द एम्प्लॉइज ऑफ देयर मनी, वो उसने नहीं किया था. माई लाइन ऑफ वर्क मतलब उसका जो पेशा था, उसका जो प्रोफेशन था, द प्रोफेशन ऑफ रॉबिंग अदर्स. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि उसके पास बहुत मौके थे. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मतलब वैसे तो इसके पास बहुत सारे मौके आए थे. क्यों? क्योंकि अनिल ने इसको चाबी दे रखी थी. इसका जब मन करता था ये बाजार जाता था, जब मन करता था वापस आता था. थिंग्स वर लाइंग इन द हाउस, बट अनिल ने इसके ऊपर बहुत भरोसा किया था. He had trusted on this man, on this boy. And that is why it was difficult to rob him. Now, this is one of the philosophical question that comes, मतलब theme based, कि ऐसे इंसान को जो अच्छा होता है ना
उसके साथ गलत करने से पहले बुरा इंसान भी 2 बार सोचता है। अनिल ना तो हरि को जानता था, ना ही he had tried to find out कि कौन है, but he had given all the responsibilities just like a family member. It is easy to rob a greedy man. ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, this is very 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 important. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. मतलब यहाँ पर he is giving a sarcastic comment कि जो greedy man होता है, जो खुद मतलब कि the person who is selfish, लालची है, उसको तो चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक इंसान जो केयरलेस है, जिसने दूसरे पे पूरा ट्रस्ट कर रखा है, जो कभी समटाइम्स ही इवन डजंट नोटिस, मतलब वो बॉदर भी नहीं करता है कि उससे उसके पैसे जो है वो चोरी हो रहे हैं, ऐसे इंसान के बाद चोरी करने के बाद देयर इज नो प्लेजर. वेल, इट इज time I did some real work. What is the real work Hari speaks about? The real work here is robbing Anil. That was his real work. वो तो इसी काम के लिए यहाँ आया था. I told myself, I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay. ये जो पूरा पैराग्राफ है, this is how he convinced himself. उसने खुद को कैसे कंसोल किया. How he consoled himself that he was not wrong. वो गलत नहीं है. खुद को उसने कंसोल किया कि भाई अगर मैं पैसा चोरी नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, ये अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, और वैसे ये कौन सा मुझे पैसा दे रहा, मैंने ले लिया तो क्या गलत किया. मतलब दिस वॉज हाउ ही कंसोल्ड हिमसेल्फ. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. सो रहा था, फिर ये उठा. If I took the money, मतलब he was making the plan. ये जो है प्लान बना रहा था कि मैं अगर अभी पैसा उठा लूं तो 10:30 बजे की जो ट्रेन है which goes to Lucknow, I can catch and I can get rid of Anil forever. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. चुपके से उठा और उठकर इसने जो है पैसा उठाया. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. मतलब उसका चेहरा एकदम साफ था. यहाँ पर जो face was clear and unlined है ना बेटा, this is also a metaphor. This is also a metaphor because this is also used for the purpose कि अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ था, मतलब उसका दिल साफ था. He was a good man. On the other hand, he did not have any scar. उसके चेहरे पे कोई कटी पिटी कुछ नहीं था. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो यहाँ पर जो ये बोला है इसने, mine was mostly scars, मतलब मे बी इसको चोट वोट, इसको जो है कभी किसी ने पकड़ के मारा वारा था, उसकी वजह से शायद उसको लगा था. My hand slid under, slid मतलब नीचे से चिपक के निकालना, under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them without a sound. बिना किसी शोर के इसने जो है वो पैसा निकाल लिया. Anil sighed in his sleep and turned on his side. मतलब उसने थोड़ा सा ऐसे किया और दूसरी तरफ सो गया. मतलब ऐसा लग रहा था as if Anil is unaware that he has been robbed. I was startled.
मतलब ये थोड़ा सा चौंक गया, ये थोड़ा सा चौंक गया. बट सॉरी, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना. चुपचाप ये जो है घुटनों के बल चला गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist. अब इसको क्यों रन करना पड़ा था? Because he had robbed. इसको चोरी होने की, मतलब he had the fear of being caught. I had the notes at my waist. इसने अपनी कमर में बांध रखा था, जो पैजामा का जो स्ट्रिंग होता है, जो आपका नाड़ा होता है, उसके मतलब के अंदर. I slowed down to a walk and counted the notes, 600s and 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. मतलब एक दो हफ्ते के लिए तो मैं अरब, यहाँ पर जो ऑयल रिच अरब है ना, दिस इज एक्चुअली अ सिमिली, अ कंपैरिजन, बिकॉज दे लिव अ लैविश लाइफ. जो अरेबियंस होते हैं, दे लिव अ लैविश लाइफ. वो एक बहुत ही लैविश लाइफ रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ. इनफैक्ट आई हैव हर्ड, मेरे को नहीं पता है, बट आई हैव हर्ड कि उनके घरों में जो है, हम तो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, वो जो है टाइगर्स पालते हैं अपने घर में. सो ही हैज जस्ट कंपेयर दैट फॉर सम टाइम he would be able to live a lavish life without any worry. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. See what उसके दिमाग में ये बात है, मैंने कभी कौन सी टिकट ली है? मैं तो हमेशा विदाउट टिकट जो है वो ट्रैवल करता हूँ. That shows that he was actually a thief, proper thief. But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. जा रही थी गाड़ी, छूट गई थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. मतलब इतनी धीरे थी कि ये आराम से उस पर चढ़ सकता था. ये पीछे से भागकर जाकर किसी भी कैरेज में चढ़ सकता था, किसी भी. But for some reason I can't explain, I lost the chance to get away. पता नहीं, इसके पैर गए नहीं आगे. He could not run and catch the train. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब खाली. Deserted मतलब खाली, बिल्कुल. Deserted मतलब होता है खाली प्लेटफॉर्म, सुनसान. In fact, in Hindi we will say सुनसान. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मतलब यहाँ पर why he says, according to him, people, if you are friendly, they would only be there with you for your money, but they may create problems. And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. इसको लग रहा था कि अगर मैं कहीं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं तो हो सकता है कि लोग मुझे, anyone curious मतलब he may be caught. ऐसा ना हो कि मैं कहीं बाहर खड़ा हूं और लोग मुझे जो है suspicious, people are doubtful about me, मेरे बारे में गलत सोचे. The only person I knew really well was the man I had robbed. मतलब मुझे इस पूरे शहर में एक ही इंसान अच्छे से जानता था और एक ही इंसान को मैं अच्छे से जानता हूँ जिसको मैंने आज धोखा दिया. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods.
मतलब चोरी करने के बाद इसने मतलब ही यूज्ड टू सी देयर रिएक्शंस, बट जब चोरी हो जाती है तो लोग कैसा फील करते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, क्योंकि वो लालची है, उसको डर लगता था कहीं और चोरी ना हो. द रिच मैन शोड एंगर, नॉर्मली जो रिच होंगे they would be angry, they want that the person should be punished. The poor man showed acceptance, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो इसको डेस्टिनी का एक पार्ट समझता है, उसे लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ हिज लक, द पार्ट ऑफ हिज डेस्टिनी. वो ज्यादा शोर नहीं मचाता, वो चिल्लाता नहीं है, वो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would only show touch of sadness. अब इसके सामने चेहरा आया अनिल का और इसको लगा अनिल ना ही गुस्सा होगा, अनिल ना ही डरेगा, अनिल ना ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो जरूर दुखी होगा. Now why? Because Anil had instilled all the trust on him. अनिल ने इस पर पूरा भरोसा किया था. और आपको पता है बेटा, दुनिया में कोई हमारे साथ कुछ गलत कर देना, डेफिनेटली वी नेवर फाइंड, हमें मतलब दुख होता है, लेकिन अगर कोई धोखा देता है ना, तो वो जो दुख होता है ना, दैट विल नेवर इरेज आउट ऑफ योर माइंड. Once 4 years back we had gone to मतलब we were on a trip. तो तब क्या हुआ हमारे साथ में, we were in the लूरे म्यूजियम, पेरिस में हम लोग लूरे म्यूजियम में थे. और हमें कई लोगों ने वहां पर ये तो बता दिया था that we have to be very careful about the money, and we were not carrying the money also. हम लोगों ने क्या किया था, मनी को डिवाइड कर रखा था चारों के पास, मतलब कुछ मेरे पास था, कुछ हस्बैंड, कुछ रिचा, मतलब कुछ रिचा दीदी और कुछ रिया के पास. बट हुआ क्या कि जब हम लूरे म्यूजियम से बाहर आए तो देयर हमारे सामने के सामने चोर भाग रहे थे. अब वहां के चोर भी देखने में तो हीरो लग रहे थे, बट हम लोगों को ये था कि यस, हम लोगों ने तो कुछ नहीं कर रखा है. फिर हम थोड़ा बैकवर्ड की तरह आने लगे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू ईट समथिंग इंडियन. तो हम थोड़ा पीछे की तरफ आए, एंड रोड, नॉर्मल रोड था बिल्कुल, पीपल वर वॉकिंग. हमारे, मैं और रिचा दीदी साथ में थे, एंड रिया एंड माय हस्बैंड वाज टुगेदर, एंड दे वर पीछे. तो हमारे सामने 4-5 गर्ल्स, बहुत सॉफ्ट, मतलब कि सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन रखे. दे केम एंड दे सेड कि हमें पैसा चाहिए फॉर सम पर्पस, ये वो. विदिन सेकेंड्स, यू वोंट बिलीव, विदिन सेकेंड्स उन्होंने मेरे हस्बैंड पे जो है पूरा मारा, एंड जितना कैश वो निकाल सकते थे ऐसे निकाला. हम दोनों ने पीछे देखा, रिया दीदी चिल्लाई तो हम दोनों पीछे भागे और हम दोनों जाके हमने उनको दबोचा पीछे से. तो मैक्सिमम अमाउंट तो हमने पैसा निकाल लिया, मैक्सिमम हमने उनसे छीन लिया, बट डेफिनेटली वी लॉस्ट सम मनी. उसका दुख इतना नहीं होता है, दैट वाज जब भी हम उस चीज को लर्न करते हैं ना, हमें याद रहता है कि दैट वाज एक्चुअली, वी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, वी शुड नॉट हैव वॉक्ड ऑन दैट डिजर्टेड रोड. मतलब लोग थे लेकिन कम थे, वी शुड हैव बीन मोर केयरफुल. बट अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर देता है, if someone cheats you, that what happens is, every time when you will remember that person, you would always remember that cheating. यहां पर यही चीज वो बताना चाहता है कि अनिल जो है उसने उस पर ट्रस्ट किया था हरी पर. So if a person is robbed, he may be angry कि मेरा पैसा चला गया, लेकिन अनिल ने पैसा नहीं, अनिल ने तो इसके ऊपर अपना ट्रस्ट डाला था. He had instilled his trust on this man.
not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, ठंड थी. It was early November and a light drizzle मतलब हल्की फुल्की बारिश, added to my discomfort. वो वैसे ही परेशान था, ऊपर से ठंड और फिर बारिश. Soon it was raining quite heavily. पहले तो drizzling था पर बाद में बारिश तेज हो गई. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब इतनी तेज हवा चल रही थी कि वो जाकर चिपक रहा था इसके ऊपर में and ठंड लग रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. बाजार में आपके जो है बीच में घंटाघर होता है. In all the main areas, हमारे दिल्ली में भी है, हरिनगर में है. The clock showed midnight, मतलब 12 o'clock. I felt for the notes. They were damp from the rain. Damp मतलब गीले हो गए थे. इसने देखा 12 बज रहे और मतलब जो नोट्स थे वो गीले थे. Anil's money. अब तक he used to say that Anil did not pay me, but आज उसको समझ आया था कि that was only the money that belonged to Anil. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. मतलब ये सब उसको इसका कंसाइंस था. This was all the consigns that he was feeling. उसको जो है अंदर ही अंदर जो है उसका कंसाइंस जो है उसकी अंतरात्मा जो है that was stricken. He was consign stricken. आपके पेपर में जब लिखना है तो यू हैव टू यूज द वर्ड ही वॉज कंसाइन. शायद वो मुझे खुश होकर 1-2 रुपए दे देता. बट अब मेरे पास सब कुछ है, बट मैं उसके लिए ना तो खाना बना सकता हूं, ना मैं बाजार जा सकता हूं, और ना ही अब मैं पढ़ना लिखना सीख सकता हूं. मतलब अब मेरे पास पैसा तो है, बट वो सारी चीजें नहीं है जो अनिल ने मुझे दिया था. अ फैमिली, अ ट्रस्ट, एजुकेशन. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. रियल ट्रेजर इज एजुकेशन, द ट्रस्ट, अ फैमिली, अफेक्शन. लेकिन वो भूल गया था. Whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees. Whole sentences मतलब अगर मैं if I read and write, if I learn to read and write, हो सकता है कि आने वाले टाइम में I may be earning a handsome amount. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man. यहां पर बिग इज नॉट फॉर दिस बिग. बिग मतलब इंसानियत में. अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. आपको चोरी करना बहुत आसान है. किसी का भी पर्स खोला, निकाल दिया, कभी कभी पकड़े भी गए तो भी कोई बात नहीं. लेकिन सही बात क्या है, मुश्किल क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, एक रिस्पेक्टेबल मैन बनना. और वो पॉसिबल होता है इफ यू आर एजुकेटेड, if you have respect, and respect can come if you are educated. I should go back to Anil, I told, if only to learn to read and write. अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है, if I want to get educated, then I should go back. I hurried back to the room, feeling very nervous. क्योंकि हो सकता है अनिल जाग गया हो सकता है वो इसको चोर मतलब चोर समझ के पकड़ के पुलिस में दे दे. For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना जितना आसान है ना, उसे उतने चुपके से वापस रखना. अनडिटेक्टेड मतलब विदाउट बीइंग कॉट. अनडिटेक्टेड मतलब विदाउट नॉलेज. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. वो अंदर गया, उसने देखा उस वक्त में बादल थे, देखा अनिल सो रहा है.
I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. ये वहाँ पर गया, इसने पैसा निकाला और जब ये अंदर रख रहा था तो he could feel, 1 मिनट के लिए तो he was stunned. फिर उसके बाद इसने मैट्रेस को ऊपर करके पैसा वहीं रख दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his note towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. सुबह ये उठा तो इससे पहले अनिल ने चाय बना दिया और इसको 50 रुपए का नोट दिया. कहा तो ये 1 या 2 रुपए चोरी करता था, उसने 50 रुपीज दिया. अब इसको माई हार्ट सैंक मतलब ये डर गया. ही वॉज स्केयर्ड. इसको लगा ये मैं पकड़ा गया. शायद अनिल उससे पूछ रहा है कि भाई ये पैसे बताओ कैसे गीले हुए हैं. शायद वो पूछ रहा है, ऐसा इसको लगा, बट ऐसा नहीं था. I made some money yesterday. Now you will be paid regularly. बट अनिल ने कुछ नहीं बोला. वेरी पोलाइटली ही सेड, कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलर सैलरी दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन. मतलब ये अंदर से पहले खुश हुआ, लेकिन जब इसने नोट को देखा ना तो ही अंडरस्टूड दैट अनिल माइट हैव नोन that he had robbed him. Today we will start writing sentences. But Anil ने कुछ भी जो है, he did not show any kind of emotions. In fact, he said, आज मैं तुमको जो है sentences बनाना सिखाऊंगा. He knew. He knew that Hari had robbed him. But neither his lips, मतलब ना तो वो मुंह से कुछ बोला, nor his eyes showed anything, और ना ही उसकी आईज में कोई एक्सप्रेशन था, मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट, गुस्सा या कुछ नहीं था. I smiled on at Anil at my appeasing way, जैसे वो हमेशा उसको स्माइल करता था झूठी मूठी का. My most appealing way मतलब a fake smile, and the smile came by itself without any effort. लेकिन आज जो था ना, that was not actually a fake smile, that was a real smile. क्योंकि इससे पहले जब वो स्माइल करता था तो he just used to give a fake smile. लेकिन आज जो उसने स्माइल दिया था, that was a real smile. So this is the story, the thief's story, the chapter.